God has created all human beings in His image. It is mentioned in the Bible, in the Genesis chapter 1. God has created every individual in His image. So what does mean by image? Image means character. Image means character. अब अगर ये character है, it means what are the characters God possess, the same characters you must possess. This is the basic funda of the character. That is, God is forgiving, you must forgive. God is charitable, benevolent, we must be benevolent, we must be charitable. जो भी God is merciful, you must be merciful. God is sympathetic, you must be sympathetic. God is empathic, you must be empathic. God is honest, you must be honest. God is trustworthy, you must be trustworthy. God is loyal, you must be loyal. So all the characteristics, all the characters of what God possesses, this should be our purpose in life. That I must develop in myself the characters of the God. वैल्यू यानी ऐसी चीज़ें जिसको तुम कीमत देते हो, जिसको तुम अच्छा समझते हो. What you value, these are your values. ईमानदारी को अच्छा समझते हो, सच बोलने को अच्छा समझते हो, वादा पूरा करने को अच्छा समझते हो, दूसरों को रिस्पेक्ट देने को अच्छा समझते हो, दूसरों को मदद करने को अच्छा समझते हो, दूसरों को फील सिक्योर करने को अच्छा समझते हो. व्हाट यू फील. और कुछ लोग इसके अपोजिट समझते हैं, वो उनके वैल्यूज़ हैं. ये तुम्हारे वैल्यूज़ हैं. सो तुम्हारे वैल्यूज़ जो रहते हैं वो तुम्हारे कैरेक्टर्स बनाते हैं. तो कैरेक्टर क्या है जो मैंने बताया कि योर बिहेवियर इन कंसील्ड एंड रिवील्ड, छुपा हुआ और जाहिर एक जैसा होना चाहिए. What you do in the private or what you do at home, that shows your character, that reflects your character than what you do in the society. कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि अपने घर पे रवैया उनका बहुत गंदा रहता है, बहुत गंदा रहता है, और सोसाइटी में वो तो बड़े नामवर रहते हैं. इसके जैसा कोई आदमी देखने नहीं मिलता, मगर उसका बीवी से जमता नहीं है, न बेटे से जमता है, न बाप से जमता है. रिलेशनशिप घर में पूरी बर्बाद, और बाहर बहुत अच्छे, सबसे बढ़िया. दिस इज नॉट कैरेक्टर. कैरेक्टर वहाँ पे कैरेक्टर. तो इट इज सेड इन इस्लाम कि always you feel that you see God, or if you don't see God, you must think that He is seeing me. समझे. कैरेक्टर ऐसे बिल्ड होगा जब हमारे मन में ये खौफ रहेगा, ये डर रहेगा कि ईश्वर मुझे देख रहा है, तो हमारे कैरेक्टर कैसे होंगे. अच्छा, तुम प्राइवेट में रहो तो भी देख रहा है, अगर तुम ओपन पब्लिक स्ट्रीट पे रहो तो भी देख रहा है, तो कैरेक्टर कैसे रहेंगे. सो अगर ये फियर तुम्हारे अंदर हो, लेट इट बी ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड, मगर दिस सेंटेंस इज वेरी पावरफुल सेंटेंस टू बिल्ड कैरेक्टर. You must always have a fear of a God that He is watching me. There is some keeper over me. Someone is watching me. तो मेरे को कैसा बिहेव करना चाहिए. Got it? So the character is what? Again, I am telling you. When you are having power, despite of having power, you are not misusing power is your character.
despite of having money, you are not misusing money. That is your character. If a person who is sitting beside you, you are talking with him very humbly and nobly, that person, that fellow is unknown to you. You have not seen him at all, but you are speaking with him with the kind words. That reflects your character. Where you have the authority also to use rude words, disrespectful words, but you are not using. Means you are restraining yourself. So the characters are built by restraining most of the bad habits. So character means to impose certain self-discipline upon you. कुछ सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे तो हमारे कैरेक्टर्स बिल्ड हो जाएंगे. समझ में आया? कैरेक्टर इज व्हाट टू फॉरगिव अदर्स. अब मैं तुमको बताता हूं कि कैरेक्टर में कैसे बिल्ड होते हैं. एक एग्जांपल के जरिए हाउ द कैरेक्टर्स आर बिल्ड. एक पिरामिड है. दिस इज वन पिरामिड. इफ वी डिवाइड दिस पिरामिड लाइक अ आइसबर्ग, एज आई सेड अर्लियर, द टॉप 10% ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग इज योर बिहेवियर. क्या है तुम्हारा? ये बिहेवियर है. और रिमेनिंग 90% of the submerged portion of the iceberg is attitude. यस, यहाँ तक ठीक है. सो सबसे इसका फाउंडेशन ऑफ योर कैरेक्टर is faith in God. Faith in God. अगर तुम्हारा फेथ नहीं होगा, गॉड पे विश्वास नहीं होगा, या तो फिर तुम ये नहीं समझोगे कि मुझे गॉड देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई तो वॉचर है, कीपर है, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो ही नहीं सकता. जो लोग बताते हैं कि उनका कैरेक्टर अच्छा है, एक्चुअली उनका बिहेवियर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है. क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है ना उसके पास. सो फेथ इन गॉड यानी जो कि मैंने बताया कि वो मेरे को देख रहा है. समझो कोई पेरेंट है. इन एब्सेंस ऑफ द पेरेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट, इन एब्सेंस ऑफ द टीचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ द टीचर, योर बिहेवियर इज सेम और डिफरेंट. सो इन एब्सेंस ऑफ अ टीचर जो तुम करते हो ना, वो तुम्हारा कैरेक्टर है. Actually, what you want to, if you want to observe yourself, what is my character, what reflect over yourself, what is your character. When you are in private, कोई नहीं है वहाँ पे, तुम हो. तुम्हारे ख्यालात क्या चल रहे हैं वो भी तो तुम्हारा कैरेक्टर ही बताता है. तुम्हारे थॉट्स. अच्छा, तुम बिहेव तो सबके साथ अच्छा कर रहे हो, मगर तुम्हारे थॉट्स उसके बारे में अच्छे नहीं है, तो कैरेक्टर अच्छा हो गया? ये कैसे बोल सकते हैं? जो मैंने पहले डेफिनेशन में बता दिया कि देयर मस्ट बी इंटीग्रिटी और इंटीग्रेशन बिटवीन थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन. ये
सब में जब होगा तभी तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा कहलाएगा। थॉट्स तो किसी को दिखते नहीं हैं, मगर लोग तुम्हारे बिहेवियर को देख के बोलते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है। मगर आपको खुद को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, क्या मेरा कैरेक्टर अच्छा है? अगर अच्छा है तो मेरे थॉट्स इसके बारे में खराब क्यों हैं? अगर खराब है तो मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आर यू गेटिंग? ठीक है, मज़ा आ रहा है? अरे ये तो बहुत, यानी ये तो मैं क्या बताऊँ कि मुझे भी नहीं मालूम था ये सारी चीज़ें। ये इतना समंदर है वसी, और ये कोई सिखाता भी नहीं यार। इसका मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की। अब ये तुम्हारा गुड लक है, एट द सेम टाइम माई गुड लक ऑल्सो, कि आई एम स्टडिंग सर्टन थिंग्स लाइक दिस, और फिर मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ, ये भी तो बड़ी बात है। नहीं तो मेरा कैरेक्टर क्या होता अगर मैं सीख के मेरे पास ही रखता? ये भी एक कैरेक्टर है, हो सकता था कि नहीं? मैं सीखता, मैं तुमको क्यों दूँ नॉलेज? मगर कैरेक्टर देना। अब फेथ इन गॉड मैं बताता हूँ, इसके ऊपर तो मैं पूरा 1 घंटा 2 घंटा बोल सकता हूँ, मगर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। God never feel guilt, God never get hurt, God doesn't love those who become angry, who become irritable at the trifles. God loves those who forgive others. So forgiving is a better quality. Giving respect to the others, what is that? This is a character. God has given a human being a respect and honor. वैसा ऑनर किसी को दिया ही नहीं, किसी स्पीशीज़ को, जैसा कि ऑनर उसने ह्यूमन बीइंग को दिया है। God has honored all the children of the Adam. So वैसा किसी को दिया ही नहीं। तो you are honored creation, so you should honor others, not only others but all creation. वो भले से लाइफ हो, लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, you should honor all creation. It doesn't mean that कि आप उसको खाना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। यानी अगर सब्ज़ी को नहीं खाएंगे तो क्या कर सकते हैं? पानी नहीं पिएंगे तो? ये तो एवरीथिंग व्हाट इज क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्स इज फॉर द ह्यूमन बीइंग। हु टेक्स द बेनिफिट ऑफ एवरीथिंग इट इज विच इज देयर इन द यूनिवर्स? ह्यूमन बीइंग। उसके सिवा कौन लेता है? ये फेथ इन गॉड को यहाँ पे ही क्लोज कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम कभी बाद में बोलेंगे, नहीं तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है। सो फेथ, देयर मस्ट बी 2 faith. One faith is faith in God, that God is a creator, God is a sustainer, God is a arranger of all the affairs, God is a provider, He is the God who has given us birth, and He is the God, towards Him is our return. ये फेथ होना चाहिए। ही नेवर बिगेट्स, यानी उसको कोई बच्चा नहीं है, न किसी का बच्चा है। एंड ही इज सेल्फ सफिशिएंट, उसको किसी का नीड नहीं है। ये हो गया गॉड का डेफिनेशन। और एक फेथ ये होता है कि वो देख रहा है मुझे और मुझे उसकी तरफ जाना है। सो आई एम अकाउंटेबल फॉर व्हाट आई एम डूइंग, I am accountable for my all behavior, my all deeds, my all thoughts, my all actions. ये I am accountable, मेरा हिसाब होने वाला है। तो ये फेथ इन गॉड हो गया। फिर सेकेंड पार्ट आता है बिलीफ। ये बिलीफ इज़ यूजुअली कंडीशनड रहते हैं, यानी हमारे सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं वहाँ का जो कल्चर रहता है उस हिसाब से हमारे बिलीफ बनते हैं। जो लोग आजू बाजू में रहते हैं हमारे, उस हिसाब से हमारे बिलीफ बनते हैं। जो हमारा कल्चर रहता है सोसाइटी का, उस हिसाब से हमारा यकीन बनता है। बिलीफ इज़ व्हाट? यकीन। और उस हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। सो हर एक का बिहेवियर डिफरेंट रहता है। रोड पे काम करने वाले का बिहेवियर, ऑफिस में काम करने वाले का बिहेवियर, मीडियम क्लास वर्कर का बिहेवियर, ये सब डिफरेंट रहता है, क्योंकि उनके बिलीफ डिफरेंट रहते हैं।
ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिलीफ, इसलिए मैं आज उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज वैल्यूज़। तुम्हारे वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ मीन्स वैल्यूज़ आर द थिंग्स दैट यू वैल्यू। नहीं समझा? वैल्यू यानी ऐसी चीज़ें जिसको तुम कीमत देते हो, जिसको तुम अच्छा समझते हो, व्हाट यू वैल्यू, दीज आर योर वैल्यूज। ईमानदारी को अच्छा समझते हो, सच बोलने को अच्छा समझते हो, वादा पूरा करने को अच्छा समझते हो, दूसरों को रिस्पेक्ट देने को अच्छा समझते हो, दूसरों को मदद करने को अच्छा समझते हो, दूसरों को फील सिक्योर करने को अच्छा समझते हो, व्हाट यू फील। और कुछ लोग इसके अपोजिट समझते हैं, वो उनके वैल्यूज़ हैं। ये तुम्हारे वैल्यूज़ हैं। सो तुम्हारे वैल्यूज़ जो रहते हैं वो तुम्हारे कैरेक्टर्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो व्हाट आर योर वैल्यूज़, यू मस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि व्हाट आर माई वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ मेक्स योर कैरेक्टर। और फिर उसके बाद आता है कि तुम्हारे फीलिंग्स क्या रहते हैं। इसके ऊपर तो मैं पूरा बोल चुका हूँ। फीलिंग्स के ऊपर रहता है तुम्हारे कैरेक्टर्स, कि व्हाट यू फील अबाउट द अदर्स, व्हाट यू फील अबाउट द क्रिएशन, व्हाट यू फील अबाउट द गॉड, व्हाट यू फील अबाउट द पीपल, व्हाट यू फील अबाउट द एनिमल्स, व्हाट यू फील अबाउट एवरी क्रिएशन। उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहता है तुम्हारा कैरेक्टर, ठीक है। इसके ऊपर तो अपना लेक्चर पहला हो चुका है। नाउ लास्ट अभी हम थोड़ा ऊपर की तह को आ रहे हैं, यानी अभी बस ये दरिया से ऊपर आना है। तो इम्पोर्टेंट है इंटेंशन। हर जगह पे जो काम आता है वो किस इंटेंशन से, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, वट एवर इज योर बिहेवियर, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो मगर इंटेंशन अच्छा नहीं है, यू आर कैरेक्टरलेस। लोगों को दिखने में तो बहुत अच्छा इंटेंशन है तुम्हारा, मगर आजकल इंटेंशन कैसा रहता है मालूम है? अर्निंग इंटेंशन। उसमें मेरा क्या, मेरा फ़ायदा क्या। आज का इंटेंशन तो यही चलता है। कुछ भी काम किसी को भी बोलो ना तो वो बोलता है मेरा फ़ायदा क्या, मेरा क्या, मेरा परसेंटेज क्या। तो ये इंटेंशन, किस इंटेंशन से तुम कर रहे हो। ही इज़ अ वॉचर, फाउंडेशन इज फेथ। ही इज़ अ वॉचर, ही नोज योर इंटेंशन, ही नोज द थॉट्स दैट अराइजेस इन योर हार्ट। तो उसको मालूम है तुम्हारा इंटेंशन, बाकी किसी को नहीं मालूम। मेरा इंटेंशन तो मुझे ही मालूम रहेगा ना। मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ, किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, किसी लड़के से बात कर रहा हूँ, किसी आदमी से बात कर रहा हूँ, तो उसको तो बेचारे को कुछ मालूम नहीं है, पर मेरा बात करने का इरादा, मेरा हेल्प करने का इरादा उसको क्यों है ये मैं जानता हूँ। कि मैं चाह रहा हूँ कि उसके पास से कुछ तो मिले मुझे, कभी ना कभी तो उसका फ़ायदा उठाऊँ, कभी ना कभी तो उसका एहसान जताऊँ, कभी ना कभी तो उसको याद दिलाऊं कि मैंने ये तेरे लिए किया था। सो दिस इज इंटेंशन। अब ये इंटेंशन अगर तुम्हारा बुरा है तो फिर तुम्हारा कैरेक्टर कैसे अच्छा होगा। सब कुछ तुम अच्छा कर रहे हो, थॉट्स में ही तो इंटेंशन आएगा। तुम्हारे एक्शन अच्छे हैं, तुम्हारे वर्ड्स अच्छे हैं, तुम्हारे डीड्स अच्छे हैं, तुम्हारे फीलिंग्स अच्छे हैं, मगर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। समझ में आया? और जो ऊपर का पार्ट है बिहेवियर, तो बिहेवियर में जो मैंने बताया कि तुम्हारे क्या क्या आते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, डीड्स और एक्शंस एंड हैबिट्स। इसके ऊपर तो मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ। तो whatever you see externally, that is the tip of the iceberg, that what you see in the society, the behavior of the different person, you consider them it is a character, but it is not character. The basic foundation of the character is attitude, how he thinks, how he acts, how he feels, and the basic foundation of attitude is faith in God.